Start. Good morning, everyone. With great enthusiasm and positive learning spirits, we are delighted to be day 3 of our faculty development training program. Over the past 2 days, we have gained valuable insight, meaningful discussions, and practical knowledge. And today promise to be equally enriching and impactful. Now I request Sri R.H. Rathod sir to welcome Dr. Jishan Khan sir with medicine plan and book. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. It gives me immense pleasure to introduce today's distinguished resource person for this faculty development training program. We are honored to have Dr. Jishan Khan sir, who is currently serving as head of the department and assistant professor in PR Poti Patil College of Engineering and Management, Amravati. Dr. Khan holds a PhD, ME, and BE in computer science and engineering, with his core areas of specialization including theory of computation, data structures, and object oriented programming. He brings with him a rich blend of 12 years of teaching experience and 3 years of research experience. His academic and research contributions are remarkable with 16 journal publications, 15 conference papers, and 7 patents and 1 copyright along with a book chapter. To his credits, he has also received several prestigious awards, including state and university level recognition in the Avishkar Research Competition and a silver medal from NPTEL for his course on automated languages and computations. Dr. Khan sir has played an active role in national initiatives such as Smart India Hackathon, both as host and mentor under AICT and the Ministry of Education, Government of India, and has successfully secured grant in aid funding exceeding rupees 10 lakh for academic event. With his vast academic expertise, research, orientation, and practical insight, we are confident that today's sessions will be highly informative and inspiring for all of us. Now, I request Dr. Khan sir to kindly take over the sessions. वॉइस इससे जाएगा ना? ठीक है, नहीं नहीं ठीक. So, good morning all. We are going to learn few topics today, including generative AI, artificial intelligence, augmented reality, virtual reality, and what is the impact of these modern technologies or tools in education. Since all the stakeholders who are attending this FDP belongs to different fields like pharmacy, engineering, diploma, so the level of my lecture today is not very technology specific. It will be like tools or hands-on session on which a layman can work also. So what is generative AI? What is AI? What is ML? You cannot say that today that AI is only for technology specific or programmers or machine learning developers or computer science and engineers. Now AI and machine learning, it is open for the person of every field. Maybe person from agriculture, maybe person from health sciences, maybe from any field, because there are two ways we can use such type of technologies. First is we can develop. So developing needs the knowledge, technical,
broad spectrum knowledge, and usage don't need knowledge. Usage is an application. We need few parameters to learn how to use AI. We can do best in the field of AI and ML in our field, or it can be helpful in our field. So what are the contents of today's session? What is artificial intelligence and machine learning? Basic point of view, because we should know what is the meaning of it. Then what is generative AI? Difference or different objectives to learn generative AI in teaching learning, which is the main part of today's session. How to write AI prompt related with prompt engineering, engineer prompt for successful results, as well as we have to ensure that when we are using AI, so it is legal, genuine, or the output should be valid in terms of AI. Apart from that, generative AI tools, which tools we should use in teaching learning process, and what is the impact of it, and different important links for your references. So there are three fields: computer science and engineering, artificial intelligence, and machine learning. What is the difference between these three fields? So computer science and engineering enables you to make hardware or software, which makes the life easy. For example, now I have to pay some money to the person. मुझे पैसे जाकर कैश देने की जरूरत नहीं है. डिजिटल ट्रांसफर एप्लीकेशन इज अवेलेबल, यूपीआई इज अवेलेबल. आई कैन transfer the money in any account. So these are the flavors of technology. These are the flavors of application which we are using. So computer science and engineering, this is a very broad platform which allows you to use technology in modern day-to-day life activities. Now, what is AI and what is ML? AI and ML, artificial intelligence and machine learning, both are the subsidiary field of computer science and engineering. If I can give you a real-time example, ऐसा एक एप्लीकेशन जिसमें तीनों चीज यूज हुई है, CSE ऑल्सो, AI ऑल्सो, ML ऑल्सो. सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज गूगल मैप्स. गूगल मैप्स एक ऐसा एप्लीकेशन है where we can bifurcate what is AI, what is ML, and what is CSE. So since Google Map is a software, so it is a product of computer science and engineering. Now when we are using Google Maps, आपने अक्सर देखा होगा, आई वांट टू सर्च सर्टेन लोकेशन और मैं उसको ऑन कर देता हूं, मुझे उस लोकेशन तक पहुंचना है. So I have to start my direction. When I am starting my direction or when I am searching the location, Google Map is going to communicate with you like a human being. आवाज आती है, turn left, turn right, you have to go straight. So if a software is having human behavior, if the software is having human behavior, बात कर रहा है, सुन रहा है, सेंस कर रहा है, then it is AI enabled. So artificial intelligence is nothing but giving human features to a software. Hearing, speaking, sensing, giving results, calculation. So it belongs to AI. Now what is machine learning? AI तो समझ गया, Google Maps हमसे बात कर रहा है तो it follows AI. एक सॉफ्टवेयर है जो AI enabled है, बट अब इसमें मशीन लर्निंग का क्या हो गया? Now what is machine learning? So आपने देखा होगा, when we choose some address, तो वो हमको 2-3 रास्ते बताता है. यहां से भी जाओगे तो आएगा, यहां से भी जाओगे तो आएगा, यहां से भी. बट इट ऑल्सो शो यू द बेस्ट पाथ. 5 kilometers, 3 kilometers, 2 kilometers. So it is showing that 2 kilometers is the shortest, so you have to follow 2 kilometers. So how a computer software is able to take the decision and how it is giving us the solution that don't follow 5 or 3 kilometers, follow 2 kilometers because it is shortest. So on the basis of knowledge received by Google Map is able to learn which are the different directions available and which is the best possible direction at current situation it will suggest. So this is the part of machine learning. So Google Map is also learning continuously सीख रहा है. एक दूसरा एग्जांपल दूंगा. कभी कभार हमने गूगल मैप्स में ऐसा भी देखा है कि 2 किलोमीटर्स का एक रास्ता और एक 5 का है. At some time Google Map will suggest you follow 5 kilometers. Why? Because on 2 kilometer road there is a congestion, there is more traffic. So with the help of machine learning parameters, with the help of data learned by Google Map, वो कैलकुलेट कर लेता है कि if you follow 2 kilometers you will be having congestion, you will need more amount of time to reach your location. So if you are following 5 kilometer roadway जो कि empty है, तो आप वहां जल्दी पहुंचोगे. तो apart from शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो बाकी की चीजें भी कैलकुलेट कर रहा है, आपका स्पीड वगैरह भी कैलकुलेट कर रहा है. अभी अगर आपने लेटेस्ट चेंजेस गूगल मैप्स में देखे होंगे, तो व्हेन वी ड्राइव,
our car and we open Google Map continuously, on the left hand side at the bottom left, it is also showing your speed, how much speed you are in traveling mode. थोड़ा accuracy issue आता है because 3 to 4 किलोमीटर का accuracy issue आएगा ही, because दोनों devices अलग अलग है. But this is the best example in which computer science and engineering, artificial intelligence and machine learning which are collaborating together to make an app. तो अगर हमने सिंपल सी भाषा में बात किया तो एक सॉफ्टवेयर है, सीएससी का प्रोडक्ट है. अगर वो ह्यूमन तरीके से बात कर रहा है हमसे, एआई इनेबल्ड है, क्वेश्चन के आंसर्स दे रहा है, हमसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, और अगर वो हमें डिसीजन भी देने के लिए हेल्प कर रहा है, तो मतलब उसके पास मशीन लर्निंग है, वो लर्नेड एप्लीकेशन. हमारी टेक्नोलॉजी में दो टाइप की मेमोरीज होती है, मतलब डेटा हम लोग स्टोर करते हैं. वन इज डेटाबेस एंड वन इज नॉलेज बेस. तो डेटाबेस इज समवेयर रिडंडेंट और रिजिड इन विच व्हेन वी आर स्टोरिंग द डेटा, तो वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर उतना डेटा यूज करता है, इट विल गिव द आउटपुट. नॉलेज बेस इज इट इज अंडर कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस. तो आजकल जितने भी एप्स है दे आर कंटिन्यूअसली इन लर्निंग मोड. जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, आज हम हमारे कॉलेज जाते हैं तो एक रास्ता हम फॉलो करते हैं, फिर हमको किसी ने बताया कि अरे एक शॉर्टकट और अवेलेबल है, तो हमने शॉर्टकट फॉलो किया, तो हमको एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो अगली बार हमने हमारा नॉलेज इंप्रूव किया. नाउ वी आर फॉलोइंग अ न्यू पाथ, सो वी आर अंडर लर्निंग प्रोसेस. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मशीन लर्निंग. नाउ व्हाट इज जनरेटिव एआई? एक हमने देखा एआई. एआई इज नथिंग बट ह्यूमन बिहेवियर इज गिवन टू द पर्टिकुलर सिस्टम. नाउ व्हाट इज जनरेटिव एआई? अब पहले जब एआई आया तो व्हाट वाज एआई डूइंग? एआई वाज एनालाइजिंग योर डेटा and AI was finding some results from your data. हमने उसको 100 स्टूडेंट्स का, फॉर एग्जांपल वी ऑल आर टीचर्स हियर, तो मैं एक एग्जांपल स्टूडेंट्स का ही कंसीडर करूंगा. इन माय क्लास देयर आर 75 स्टूडेंट्स एंड आई एम स्टोरिंग और एंटरिंग द मार्क्स ऑफ 75 स्टूडेंट्स इन एआई पोर्टल. तो एआई विल फाइंड which student is topper, which student is at lowest, which student is having average marks. बराबर है. तो ये हो गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस which is working on the current data. But now world is circulated by a new term that is called as generative AI. Generative AI means now AI is also capable to generate new data, जो कि किसी का ह्यूमन का बनाया हुआ नहीं है. AI can generate new images जो कि कहीं अवेलेबल नहीं है. AI can generate music. AI can write literature survey. AI can talk with you by his or her own words in different gender issues also है उसके पास में. तो ये डेटा कहां से आ रहा है? तो नाउ वर्ल्ड इज हैविंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. हमारे कंप्यूटर की भाषा में बड़े बड़े मॉडल्स है. बेसिक मैं ऐसा बोलूंगा कि बहुत बड़ा डेटाबेस हो चुका है, और उन डेटाबेस को डेटा को क्लासिफाई करके लीनियर रिग्रेशन और इस तरह की चीजें लगा के समरी निकाल के एआई विल बी एबल टू जनरेट न्यू डेटा. तो अगर अभी आप देखोगे कि अगर आप कोई एआई टूल में जाके लिखते हो आई वांट एन इमेज फॉर 2026, तो कुछ ऐसी नई इमेज खुद ही जनरेट करके देगा. आप उसको स्पेसिफिकेशन दो, वो भी जनरेट करके देगा. नाउ एआई इज कैपेबल टू जनरेट न्यू डेटा एंड दिस न्यू डेटा कैन हेल्प अस इन एजुकेशन. नाउ देयर आर टू वेज इन विच एआई वर्क्स. अगर आपको दुनिया में एआई सीखना है तो दो तरीके हैं. एक, यू कैन लर्न हाउ टू डेवलप एआई मॉडल. उसके लिए आपको कंप्यूटर साइंस का डीप नॉलेज लगेगा, प्रोग्रामिंग, डेटाबेस एंड सो ऑन. बट इफ वी बिलोंग्स टू डिफरेंट फील्ड, तो हमने दूसरे रास्ते पे जाना चाहिए, हाउ टू यूज एआई इन आवर लाइफ. चाहे हम कंप्यूटर फील्ड से बिलोंग नहीं भी करते हो, स्टिल वी कैन यूज एआई एट वेरी बेस्ट एक्सटेंट. अभी हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स. तो मैंने जो इसमें पहला पॉइंट लिखा है, हाउ टू यूज जनरेटिव एआई. अगर हमको ये आता है, इफ वी यूज एआई एट अ वेरी बेस्ट, इन अ वेरी बेस्ट मॉडल या आर्किटेक्चर, अगर हमको कुछ फॉर्मूले उसके पता रहे तो हम उसका बहुत अच्छा यूज ले सकते हैं. इन नाउअडेज हम सारी फैकल्टी चैट जीपीटी हम लोग यूज कर रहे हैं. वी आर यूजिंग जेमिनाई ऑल्सो, बट समवेयर वी आर मिसिंग सम नॉलेज अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सो दैट हमारा रिजल्ट इतने बेहतरीन नहीं आ रहे हैं. अगर हम यूज करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कुछ फॉर्मूले या फिर हम लोग कुछ टैक्टिक्स यूज करते हैं जनरेटिव एआई की, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे रिजल्ट एज कंपेयर टू प्रीवियस बेहतरीन आए और हमारा काम बहुत इजीली
सॉल्व हो जाए। मैं अभी कुछ एग्जांपल्स दूंगा। अब मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सेशन होने के बाद खाली समय में आप इन चीजों को थोड़ा सा गौर करिएगा। गूगल का एक बहुत बेस्ट कोर्स है, जनरेटिव एआई फॉर एजुकेटर्स। गूगल ने ये स्पेशली फैकल्टीज के लिए बनाया है और उसका प्री रिक्विसाइट कुछ भी नहीं है। यू कैन बिलोंग टू एनी फील्ड, आप ये कोर्स को कर सकते हो। इतना छोटा कोर्स है कि आप 2-2.5 घंटे में उसको नेक्स्ट कर करके पढ़ के उसके एग्जाम्पल्स देखकर आप कर सकते हो। इफ यू सर्च ऑन गूगल जनरेटिव एआई फॉर एजुकेटर्स, तो आपको ऐसी स्क्रीन आएगी गूगल की, आप उसको एनरोल बटन क्लिक करोगे तो वो आपको बोलेगा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। तो हम यहाँ पे टाइम जोन, फॉर एग्जांपल टाइम जोन सिलेक्ट कर देंगे, टाइम जोन मांगेगा तो वी विल सिलेक्ट मुंबई, ईमेल आईडी इज देयर, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट में हमने पुटअप कर दिया, रजिस्टर। तो अगर आप देखोगे इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, वेलकम टू द गूगल फॉर एजुकेशन लर्निंग सेंटर, दिस इज स्पेशली मेड फॉर टीचर्स। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि हमको इसमें जाना है टॉपिक्स फॉर एजुकेटर्स एंड यहां पे देखिए गूगल एआई इन K-12 एजुकेशन। अगर हम K-12 को पढ़ाते हैं तो उसके लिए भी स्पेशल है, हायर एजुकेशन के लिए अलग है। वी विल बी एक्सप्लोरिंग जनरेटिव एआई फॉर एजुकेटर्स, जो मैंने आपको नाम बताया, जनरेटिव एआई फॉर एडुकेटर्स। गेट स्टार्टेड। तो एक सर्वे लेगा वो नॉर्मली आपसे कि आपको कितना नॉलेज है एआई के बारे में, या इफ यू आर न्यू। फिलहाल हम उसको स्किप करते हैं। सर्वे इज कंप्लीटेड, एक्सप्लोर द कोर्स ओवरव्यू। ये कोर्स हमने डे टू डे लाइफ में सबने करना चाहिए, 2-2.5 घंटे हमको देने पड़ेंगे, बट ये करने के बाद हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे जो एआई यूज करने पर हमको हेल्प करेंगे और हमको आउटपुट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूं इन्वेस्टिगेट द पोटेंशियल ऑफ एआई इन योर प्रैक्टिस। तो मुझे कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स आपको देने हैं। देखिए मैंने स्लाइड में ये पुटअप किया था। देयर इज अ हाई स्कूल टीचर विच बिलोंग्स टू, वो चाहता है कि अब म्यूजिक टीचर है, उसको कंप्यूटर यूज करना है, काफी डिफिकल्ट है टाइप करना, फॉर्मेटिंग करना, अलग अलग केस सिनेरियो दिए गए हैं। तो 4 चीजें दी गई है कि एक ऐसा सिनेरियो है जो म्यूजिक टीचर है और वो अपने बच्चों के लिए एक टेम्पलेट क्रिएट करना चाहता है। तो हाउ एआई कैन हेल्प, प्रॉम्प्ट क्या लिखेंगे हम, चैट जीपीटी को बोलो या जेमिनाई को बोलो, सबके लिए कॉमन है, हाउ आई विल राइट द स्टेटमेंट। इस तरह से अगर मैं लिखूंगा, आगे हम इसको पैरामीटर वाइज डिवाइड भी करेंगे। एक्टिंग एज अ हाई स्कूल म्यूजिक टीचर, एक्टिंग एज अ हाई स्कूल म्यूजिक टीचर, इट मींस दैट आई एम टेलिंग चैट जीपीटी और जेमिनाई हु आई एम, आई मतलब मैं कौन हूं, मेरा रोल प्ले क्या है। क्रिएट अ वेलकमिंग न्यूज लेटर टेम्पलेट फॉर द म्यूजिक डिपार्टमेंट with a calendar of events for families, staff and other students to view। 2 लाइन का मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, मुझे क्या चाहिए, मैं कौन हूं और किसके लिए चाहिए, और मैंने उसमें कैलेंडर वर्ड भी यूज किया सो दैट उसमें डेट्स भी आए। अगर हम इस तरह का प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो देखिए उसका आउटपुट कैसे आएगा। उसका आउटपुट इस तरह से सिस्टमेटिक आएगा, वेलकम टू द हार्मोनी, मैसेज भी वो जनरेट करेगा, कैलेंडर लिखा था तो डेट आ जाएगी, अलग अलग इवेंट्स के नाम आ जाएंगे, और सोशल मीडिया की लिंक्स इस तरह से उसने 2 लाइन में जनरेट किया। अब ये तो हम हमारा मैसेज भी लिख सकते थे,
हम डायरेक्ट अक्सर हम क्या करते हैं, वी यूज टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद चैट जीपीटी और गूगल और जेमिनाई, क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर अ न्यूज़लेटर, बट वी डिडंट प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आप जितना एआई को खुल के बताएंगे कि आप कौन है, आपको क्या चाहिए, यू विल गेट द बेटर रिजल्ट। तो ये एक सैंपल है। दूसरा सिनेरियो, 9th ग्रेड हिस्ट्री टीचर है और उसको अपने क्लास के लिए एक एक्टिविटी चाहिए। प्रॉम्प्ट क्या लिखा देखिए, आई एम अ हाई स्कूल हिस्ट्री टीचर। पिछले प्रॉम्प्ट और ये प्रॉम्प्ट में एक सिमिलैरिटी देखा, पहले तो हम ये बताते कि हम कौन है, सो दैट एआई शुड बी क्लियर। I am a high school history teacher. Create an informative and engaging summary about the concept of daylight saving time for 14-year-old students. उनको एक्टिविटी देनी थी, बच्चों को छुट्टी दे रहे हैं समर के लिए और उनको कुछ समर में एक्टिविटी देना है। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चों को होमवर्क देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, तो वी नीड क्रिएटिव असाइनमेंट्स। अब हम, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि टीचिंग में रहने के बाद अभी ऐसा हो गया है कि 30% टीचिंग हो गया है एंड 70% वी हैव टू डू paperwork, facing committees, facing different scenarios, following different portfolios. तो 30% टीचिंग रहने के बाद वी आर नॉट गेटिंग टाइम टू डू सम क्रिएटिविटी इन आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो एआई इज द बेस्ट असिस्टेंट वी हैव। तो देखिए इसका आउटपुट कैसा आएगा। एआई ने उनके लिए एक्टिविटी जनरेट करके दी कि क्या करना है समर में, किस तरह से। नेक्स्ट एजुकेटर इज मैथ टीचर। मैथ टीचर को कुछ क्विज जनरेट करने थे, तो उन्होंने लिखा आई एम अ 6th ग्रेड मैथ टीचर, क्रिएट एन इंक्लूसिव सिनेरियो अबाउट स्पोर्ट्स विथ फिक्शनल डेटा सेट। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको कभी कभी बच्चों को डेटा देना होता है, जैसे मैं मैथ्स टीचर हूं, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गिव द डेटा ऑफ सर्टेन स्टूडेंट, 10-12 स्टूडेंट का मैं कुछ तो भी डेटा दूंगा। तो मुझे एज अ टीचर स्टूडेंट्स को जब एग्जाम्पल देना होता है तो मैं डमी डेटा सेट या फेक डेटा सेट बनाता हूं, टेबल वगैरह, उसमें हमारा समय बहुत जाता है। तो आपको एआई डमी डेटा सेट भी बना के देखा, देखिए ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है। मुझे एक स्पोर्ट्स का फिक्शनल डेटा सेट चाहिए जो मैं बच्चों को देना चाहता हूं, जिसपे बच्चे ग्राफ क्रिएट करें। अब मुझे अगर बच्चों को सिखाना है कि ग्राफ क्रिएट करो, तो आई हैव टू गिव सम नंबर्स, पैरामीटर, और बहुत सारी वैल्यूज देनी पड़ेगी। एआई विल हेल्प यू। आपने एक लाइन लिखी, देखिए एआई ने डेटा सेट भी जनरेट कर दिया, 7th स्टैंडर्ड, 6th ग्रेड, 7th ग्रेड, 8th ग्रेड, नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिगर्स। उसके बाद ग्राफ कैसे बनाना है उसकी नोट लाइन भी क्रिएट कर दी। मतलब अगर हम एआई का प्रॉपर यूज करते हैं तो हमको ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्री पार्ट करने की जरूरत ही नहीं है। एक खास बात ये बताता हूं, मैं तो डेली लाइफ में एआई यूज करता हूं मेरे एजुकेशन फील्ड में। मैं जहां पढ़ाता हूं हम डेली करते हैं। और एक बात मैंने ऑब्जर्व की है, आप जब जेमिनाई से बात करते हो, परप्लेक्सिटी से बात करते हो, कुछ टूल्स मैं बताऊंगा, तो देयर इज एन ऑप्शन ऑफ अ न्यू चैट। लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आता है न्यू चैट। देखिए कितना बेहतरीन अंदाज है। जैसा आज मैंने जेमिनाई से एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे इस प्रॉब्लम का आंसर या सॉल्यूशन चाहिए, उसने दे दिया, मैंने कुछ तो भी लिख लिया। फिर मैंने और 2-3 सवाल उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड पूछे, तो मेरी चैट चल रही है उसके साथ उस टॉपिक से रिलेटेड, और उसने मुझे सॉल्यूशन दिया, मैंने नोट डाउन कर लिया, मैंने जेमिनाई बंद कर दिया। अब 4-5 दिन बाद मैं वापस से जेमिनाई शुरू करता हूं, राइट। तो हमने एक हैबिट डालनी चाहिए, वी हैव टू क्रिएट अ न्यू चैट। तो व्हेन यू आर क्रिएटिंग मल्टीपल चैट्स इन जनरेटिव एआई चैटबॉट्स, आपके कम्युनिकेशन सेपरेट सेशन वाइज मेंटेन रहेंगे। अब जो मेरा कम्युनिकेशन एक मैथ्स के प्रॉब्लम से रिलेटेड हुआ, 3-4 बातें हुई, अब मैं 1 साल बाद अगर वही चैट ओपन करता हूं और आगे का सवाल पूछता हूं, तो मुझे उसको पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको आगे ही आंसर देना लगेगा। जैसे अक्सर व्हेन वी कॉल ए कस्टमर केयर को हम बताते हैं वी आर फेसिंग सच एंड सच प्रॉब्लम। कस्टमर केयर हमको टिकट नंबर जनरेट देता है कि आपका प्रॉब्लम 24 आवर्स में सॉल्व हो जाएगा, XYZ। और फिर 24 आवर्स में जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, व्हेन वी कॉल द कस्टमर केयर अगेन, तो आपको पता होगा अ न्यू कस्टमर केयर विल बी देयर एंड आपको फिर से पूरी कहानी उसको बतानी होती है। सो जेमिनाई को, चैट जीपीटी को, यू डोंट हैव टू टेल द स्टोरी अगेन। आपका कम्युनिकेशन 1 साल बाद भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस तरह से। अब उसके बाद ये जो चीजें देखी आपने, ये मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स के एग्जांपल बताए, ठीक है।
ये किसने जनरेट किया है? गूगल ने। हम तो फैसिलिटेटर हैं, हम लोग अलग अलग कोर्सेज करते हैं हमारे लाइफ में, वी यूज टू गेन आवर नॉलेज और हम लोग इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं। तो मैंने आपको ऑथेंटिक जो है वेबसाइट वो बताई है कि यहां से हमने करना चाहिए। गूगल इज द बिग जायंट कंपनी इन कंप्यूटर इंडस्ट्री जिसने हर डोमेन में काम किया है। एआई, एमएल, एजुकेशन, क्लासरूम, पेट्रोलियम, एग्रीकल्चर, हर जगह पे गूगल के एप्लीकेशंस अवेलेबल है। तो अगर हमने गूगल की हेल्प ली तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग हमारा नॉलेज गेन कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हाउ टू राइट एआई प्रॉम्प्ट। एनाटॉमी ऑफ प्रॉम्प्ट। आफ्टर लुकिंग एट 2 to 3 सैंपल्स, हमको ये समझ में आया कि फ्रॉम नेक्स्ट टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू यूज चैट जीपीटी और जेमिनाई और परप्लेक्सिटी, अगर हमको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो हमने ये करना चाहिए कि ये 5 पैरामीटर हमको फॉलो करना है। 5 पैरामीटर्स वी हैव टू फॉलो। फर्स्ट इज पर्सोना, सेकेंड वन इज एम, थर्ड वन इज रेसिपिएंट, फोर्थ वन इज थीम, and fifth one is structure. If we give or involve these 5 things in our prompt, prompt का मतलब ये है कि मैं जो चीज मांग रहा हूं, मैं क्वेरी जो है मेरी चैट जीपीटी को, जेमिनाई को जो मैं लिख रहा हूं, उसमें अगर ये 5 चीजें इन्वॉल्व होती है तो एआई विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स, एक्यूरेट रिजल्ट्स। पर्सोना मीन्स योर रोल, जैसा आपने देखा होगा आई एम अ 6th ग्रेड मैथ टीचर, तो एआई को बता दिया आपने कि यू आर अ मैथ टीचर, और वो भी कौन सा 6th ग्रेड। तो एआई विल गिव यू द प्रॉब्लम फॉर 6th ग्रेड ओनली। अगर आप सिर्फ उसको बोलेंगे आई एम अ मैथ टीचर, तो फिर वो आपको कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी दे सकता है जो 6th ग्रेड के ऊपर के हो। तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक, आइडेंटिफाई योर रोल, स्टेट योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट यू वांट फ्रॉम एआई। जनरेटिव एआई की बात कर रहा हूं क्योंकि ये जो सारी चीजें हम देख रहे हैं, दिस इज जनरेटिव एआई। हम एआई से ऐसी चीज मांग रहे हैं, देखिए मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया, initially what AI was doing, we were giving large amount of data to AI and AI was finding information from that data and it was giving to you. For example, I am giving the marks of 75 student and I am asking AI which is the topper, वो दे दो, so it was predefined information. But now we are working on generative AI. अभी मैं जब AI से बात करता हूँ तो I am not giving any information to AI, मैं सिर्फ AI से डायरेक्ट सवाल कर रहा हूँ। जैसे AI मेरा असिस्टेंट है, मैं उसको बोल रहा हूँ मेरे लिए आज मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, कल मेरे लिए फार्मेसी का एक मेडिसिन का सजेशन दे दो, परसों मेरे लिए एग्रीकल्चर के लिए टिप दे दो। मतलब मेरे पास एक ऐसा असिस्टेंट है जिसको दुनिया का सब नॉलेज है। अगर हमने उसको इस तरह से डील किया और हमने 5 रोल या 5 पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किए, इट बिकम्स वेरी इजी। थर्ड वन इज रिसिपिएंट, आपको एआई को ये भी बताना है कि हम किसके लिए बना रहे हैं। हम ये जो एम है, आई एम अ 6th ग्रेड मैथ टीचर, आई वांट हेल्प फॉर 6th ग्रेड स्टूडेंट्स। थीम क्या चाहिए मुझे, जैसे न्यूज लेटर चाहिए, आई वांट असाइनमेंट, आई वांट क्वेश्चन पेपर, आई वांट क्वेश्चन बैंक, आई वांट हिस्ट्री ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट। एंड स्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव द टेम्पलेट ऑल्सो। मैं लिखता हूं जेमिनाई को राइट अ मेल फॉर मी, राइट अ व्हाट्सएप मैसेज फॉर मी। अभी आजकल आप देखिए व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे, हमको अलग अलग कंपनीज के प्रमोशनल लेवल के व्हाट्सएप मैसेज आते हैं। क्या आपने गौर किया आजकल के व्हाट्सएप मैसेजेस में इमोटिकॉन्स बहुत आते हैं, अलग अलग टाइप के सिंबल्स। अगर हम मैन्युअली व्हाट्सएप मैसेज पे टाइप करें और सारे इमोटिकॉन्स को अरेंज करें तो इट नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। तो यस, एआई इज जनरेटिंग यू ब्यूटीफुल व्हाट्सएप मैसेज ऑल्सो इंक्लूडिंग इमोटिकॉन्स ऑल्सो। सो यू हैव टू गिव द स्ट्रक्चर कि भाई आपको किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए। सो इफ यू इंक्लूड दिस 5 थिंग्स इन द प्रॉम्प्ट, योर आउटपुट विल बी बेटर। अब एक बात ये करेंगे कि अगर हम लोग ये सारी चीजें यूज करते हैं तो वी कैन सेव द टाइम, वी कैन सेव द टाइम ऑफ आवरसेल्फ ऑल्सो, एज वेल एज जिनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं उनका भी हम समय बचाएंगे। लेकिन ये हो गई पॉजिटिव थिंग्स। आई हैव लर्नड प्रॉम्प्ट। अब ये तो मैंने कुछ आपको सैंपल्स दिए, मुझे आज के सेशन में मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पूरा नहीं सिखा सकता बिकॉज दिस इज अ स्टार्ट। With the help of FDP, we can find some new ways, new pathways, and we can start to gain new knowledge.
तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आप पढ़ोगे, ये कोर्स अगर आप करोगे जो मैंने आपको बताया है, गूगल सॉरी जनरेटिव एआई फॉर एजुकेटर्स, पूरा अगर आप कर लेते हो तो आपके आप में बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। लेकिन ये होगा पॉजिटिव साइड, देयर आर ऑल्सो नेगेटिव साइड इज देयर ऑफ एआई। अक्सर एज अ टीचर हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने कोई असाइनमेंट करने को बोला, तो स्टूडेंट्स आर कंटिन्यूअसली यूजिंग चैट जीपीटी और जेमिनाई, और खराब बात ये हो चुकी है कि वो वहां से जनरेट करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं और डायरेक्ट हमको दे देते हैं। दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू रीड दैट। तो अभी भी एआई का एक्यूरेसी 100% नहीं है, बिकॉज एआई पहले ये करता था कि हमारे दिए हुए डेटा में से इंफॉर्मेशन, छुपी हुई जानकारी बाहर निकाल के देता था। आजकल एआई नई जनरेशन, नई इंफॉर्मेशन भी जनरेट करके दे रहा है, बट एट द एंड वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। नेचुरल इंटेलिजेंस इज मेड बाय गॉड। ये जितना भी है ह्यूमन मेड है, और ह्यूमन एक लेवल के आगे नहीं जा सकता। तो अगर आप देखोगे कि एआई में बहुत सारे एरर्स हैं। अगर हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे इंफॉर्मेशन भी सर्च करते हैं तो आप देखो हर जगह से डेटा एआई कलेक्ट करता है, उसको ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर दे देता है और दे देता है। अगर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वी विल फाइंड मेनी एरर्स, वी विल फाइंड मेनी एरर्स इन एआई। तो हमको थोड़ा सा एआई के बारे में रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो किस तरह से हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा। एआई का पहला डिसएडवांटेज या जनरेटिव एआई का है अनफेयर बायस। मतलब आपको डेटा जो है वो एक सेटल्ड बिहेवियर में नहीं मिलेगा। कहीं एआई बोलेगा इट इज पॉजिटिव, कहीं एआई बोलेगा इट इज नेगेटिव। डिप्लोमेटिक अंदाज हो जाएगा, मतलब आप उसमें से कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे। इट विल गिव यू एम्बिग्विटी। समटाइम्स एआई विल गिव यू हेल्यूसिनेशन। व्हाट इज हेल्यूसिनेशन, मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं। दिस इज द एग्जांपल फॉर हेल्यूसिनेशन। एआई को आपने बोला कि योर सिस्टर और माय सिस्टर नेम इज रॉबिन। एआई को मैंने बोला माय सिस्टर नेम इज रॉबिन, और एआई दूसरी तरफ मैंने बोला कि रॉबिन इज ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ अ बर्ड। तो अब एआई क्या करेगा, एआई के पास में दो डेटा सेट है, एआई दोनों को कंबाइन करके इट विल जनरेट हेल्यूसिनेशन। इट मींस दैट योर सिस्टर इज अ बर्ड, ऐसा जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह के एरर्स एआई दे रहा है। जानकारी मैं नहीं दे रहा हूं, जो दुनिया की सबसे जायंट कंपनी है जिसका सबसे ज्यादा काम अभी एआई में चल रहा है, गूगल, उन्होंने ही एग्जांपल्स दिए। तो बोलने की बात यह है कि हमको रिलायबल नहीं रहना है। पहला हो गया अनफेयर बायस। समटाइम्स एआई गिव यू डिप्लोमेटिक आंसर्स, यू कैन नॉट फाइंड द कंक्लूजन। समटाइम्स एआई विल क्रिएट हेल्यूसिनेशंस, फनी क्रिएचर क्रिएट कर देगा जिसका कोई सेंस नहीं बनता। एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड चीटिंग, हमारे एजुकेटर्स में ये पॉइंट बहुत ज्यादा है। आज पेपर पब्लिकेशंस होते हैं, वी यूज टू राइट पेपर्स इन जर्नल्स, कॉन्फ्रेंसेस। मेजॉरिटी ऑफ द पेपर्स आर, बिटर ट्रूथ है, एआई इनेबल्ड प्लैगरिज्म आ गया उसमें। तो अगर अभी आप देखोगे तो एंटी प्लैगरिज्म सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जहां पे चेक होता है कि हाउ मच कंटेंट इज न्यू और यूनिक और रिसर्च बेस्ड, तो ठीक है मैंने 4-5 स्टेटमेंट मेरे बदल के लिख दिए, लेकिन एआई से मैंने कितना लिया है वो भी चेक होने लगा। तो प्लैगरिज्म सॉफ्टवेयर को भी कहीं ना कहीं बीट किया जा सकता है। अगर मैं आपको सिंपल और बिटर ट्रूथ बताऊं, मैंने एक पेपर का पूरा आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर लिया और मैंने उसको प्लैगरिज्म सॉफ्टवेयर को दिया, तो प्लैगरिज्म ने मुझे बताया ये लाइन में प्लैगरिज्म है। तो व्हाट इज प्लैगरिज्म? प्लैगरिज्म इज नथिंग बट यू आर कॉपी एंड पेस्टिंग द स्टेटमेंट एज इट इज। आप उसके टेंसेस बदल दो, आप उसके स्ट्रक्चर बदल दो, घुमा दो उसको, बिकॉज प्लैगरिज्म इज इट इज अगेन अ सॉफ्टवेयर, इट इज मैचिंग द पैटर्न। 4 वर्ड अगर एक साथ लिखे आ गए तो प्लैगरिज्म में आ गया, तो मैं उसका स्ट्रक्चर बदल दूंगा। स्ट्रक्चर बदल गया तो नाउ अब प्लैगरिज्म उसको पकड़ नहीं पा रहा है, माय पेपर वाज एक्सेप्टेड।
तो इस तरह की चीजें एआई के आने के बाद बहुत ज्यादा होने लगी है। एकेडमिक इंटीग्रिटी लूज हो रही एंड चीटिंग पर्पस बहुत ज्यादा हो रहा, तो वो हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अभी भी ऐसी कोई टेक्निक एआई में नहीं आई है जिसके थ्रू हम उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर सके। सिमिलरली प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ये धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, बिकॉज आप देखिए जनरेटिव एआई आने के बाद जनरेटिव एआई इज डूइंग, जनरेटिव एआई is accessing the database of all the big giant companies like Facebook, Instagram, और वो उसको मिला के कुछ तो भी नया रिजल्ट जनरेट करके देता है। तो रिसर्चर्स का कहना ये है कि आगे जाकर बहुत समय हमारे साथ ऐसा होगा विच कंटेंट इज ओरिजिनल एंड विच कंटेंट इज एआई जनरेटेड, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई। और आगे जाके अगर किसी ह्यूमन बीइंग का शक्ल मॉर्फिंग करके कुछ कम ज्यादा हो जाता है तो इमेज खराब हो जाती है, लेकिन उसको प्रूफ करे तक एक समय जाए तक इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन लाइफ। तो एआई के प्रोज है तो कॉन्स भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए आगे जो फील्ड ये बताई गई है कि साइबर क्राइम शेल और ये सारी चीजें जो आगे है, इन चीजों को भी एआई इनेबल करके, मतलब एआई खराब कर रहा है तो उसको लड़ने के लिए भी हमको एआई यूज करना है। एआई विल बी वर्किंग एज अ एथिकल हैकर ऑल्सो in terms of identifying whether it is original information or fake information। अगर आप अभी सोशल मीडिया पे देखेंगे तो एआई के बहुत सारे ऐसे मॉडल भी बन चुके हैं जो फेक न्यूज भी जनरेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा वीडियो आता है जैसे वी आर लुकिंग एट आज तक न्यूज, वीडियो आता है, एंकर होता है, न्यूज आ जाती है, आवाज आती है, आज ऐसा 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 हो गया, बाद में पता स्प्रेड हो जाती है, बाद में पता चलता है इट इज फेक। तो अभी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे कोई प्लेटफॉर्म बना नहीं है जो आइडेंटिफाई कर सके, ब्लॉक कर सके। रिसेंटली जेमिनाई ने एक बनाना मॉडल इंक्लूड किया है जेमिनाई में, अगर आपने यूज किया होगा तो। बनाना मॉडल इज स्पेशली वी आर यूजिंग फॉर इमेज जनरेशन। तो इमेज अगर हमको जनरेट करना है तो गूगल जेमिनाई इज प्रोवाइडिंग बनाना मॉडल। तो अभी उन्होंने बहुत सारे फिल्टर्स ऐसे लगाए हैं कि अगर आप कुछ रूल्स के अपोज में कुछ चीजें जनरेट करना चाह रहे हो तो बोलते हैं। कुछ दिनों पहले हम सिम्टम्स लिखते थे एआई को, जेमिनाई को, और हम बोलते थे ये सिम्टम्स है, कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए। तो कुछ दिनों पहले तक मेडिसिन भी सजेस्ट करता था कि आपने ये मेडिसिन लेनी चाहिए, ये डोजेज लेने चाहिए। अभी अगर आप देखोगे तो नाउ साइबर सेल और ये सारी चीजें, एथिकल चीजें अभी हावी हो रही है एआई पे, तो एआई को भी रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। अभी अगर आप उससे पूछे कि ये मेडिसिन का कितना डोज लेना चाहिए, तो अभी एआई आपको आंसर देता है कि आई एम नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, आई कैन नॉट सजेस्ट यू। अभी आपको इस तरह के आंसर्स मिल रहे हैं। तो दीज आर द वे ऑन विच वी आर गोइंग एथिकली, बट फिर भी उसको भी बाईपास करने के काफी तरीके हैं। तो व्हाट इज द एम of today's session कि we can use generative AI in our education field so that we can find the best output, and these 5 parameters we can use so that AI will give you best results. Apart from that, there are various prompt engineering concepts also, zero shot prompt engineering, one shot, few shot, and COT prompting, in which we can communicate in multiple ways to find the best result। पहली बार आपने क्वेरी लिखी तो एआई ने इतना प्रॉपर आंसर नहीं दिया, फिर आपने रीजनरेट क्वेरी की अगेन और उसने बेस्ट दिया, फिर रीजनरेट किया। तो कभी कभार ऐसा होता है ड्यूरिंग मल्टीपल शॉट्स वी कैन फाइंड द बेस्ट रिजल्ट्स इन एआई। एंड हमने 4 लिमिटेशंस के बारे में बात की, अनफेयर बायस, हेल्यूसिनेशंस और अनरिलायबल इंफॉर्मेशन, academic integrity and teaching, as well as privacy and security। Similarly, now what is the responsibility of ourselves when we are using AI? हम ये नहीं कह रहे कि AI यूज करना बंद कर दो। आगे अगर आपने देखा होगा एनवीडिया इज द बिग कंपनी जिसका पूरा पैसा AI में लगा है। दुनिया के सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर्स कंप्यूटर्स में एनवीडिया ने बनाया है। तो हम अभी आजकल बहुत सुन रहे हैं कि आगे AI विल टेक योर जॉब्स। इट इज अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट कि AI आ गया तो जॉब्स चले जाएगी। तो जिन्होंने एआई बनाया है, जिनका पूरा दिन एआई में गया है, जिनका पूरा पैसा दुनिया में एआई में लगा है, उनका क्या कहना है? उनका कहना ये नहीं है कि एआई जॉब्स ले लेगा। उनका कहना ये है जॉब्स नहीं जाएंगे, रोल बदलेंगे। पर्सन विल टेक ओवर द जॉब ऑफ दैट पर्सन जिसको एआई आता है, जिसको एआई नहीं आता है। इफ आई नो एआई एंड समवन इज नॉट नोइंग एआई, तो आई कैन रिप्लेस द जॉब, मैं आ जाऊंगा उसकी जगह। बिकॉज नाउ कंपनी वांट्स कि उनको रिजल्ट जल्दी चाहिए।
एक बेसिक एग्जांपल कंप्यूटर इंडस्ट्री का देता हूं। प्रीवियसली जब एआई नहीं था, एआई इनेबल्ड एप्लीकेशंस नहीं थे, एज अ जूनियर डेवलपर कंपनी में ज्वाइन होते थे और उसको वेबसाइट बनाने का टास्क दिया जाता था, तो उसका डेडलाइन मिनिमम रहता था 15 डेज टू 1 मंथ। 15 दिन से 1 महीने के अंदर मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा किसी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की। अगर अभी आप एआई को बोलते हो कि मुझे लिए वेबसाइट बना के दो, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एआई वेबसाइट बना के दे सकता है, और वो भी इतनी बेहतरीन वेबसाइट जो 15 दिन और 1 महीने में भी नहीं। अगर आपको बहुत ही पावरफुल वेबसाइट चाहिए तो उसको तो 2 से 3 महीने का प्रोजेक्ट होता है, वो आपका अभी विद इन सेकंड जनरेट करके देता है। तो ऑफकोर्स अगर एआई हमारा काम कर रहा है तो जॉब तो जाना ही है, बट एट द एंड एआई इज अ मशीन and machine needs navigation. Machine cannot take the complete control of anything, so person is needed. They are able to know what is AI, how to use AI, how to control AI, and how to find the best results through AI. They will replace the job. So AI jobs को replace नहीं करेगा, AI will replace the roles. So what is the responsibility of a person living in the society? 3 responsibilities when we are using AI. One is you have to verify the information generated by AI. टाइमिंग कंस्टेंट रहने की वजह से हम जनरेट करते हैं और आगे पास करते हैं, तो हमने थोड़ा सा वेरीफाई करना चाहिए। सेकेंड वन इज रिसर्च, वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, क्योंकि अगर एआई ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको मल्टीपल सोर्सेज से वेरीफाई करें। एंड लास्ट वन इज रिव्यू, बिफोर सबमिटिंग द इन्फॉर्मेशन वी हैव टू रिव्यू द रिजल्ट्स। इन माई फैमिली देर आर सम डॉक्टर्स ऑल्सो, उनके साथ में भी हमारा कम्युनिकेशन होता रहता है। वी बिलोंग्स टू टीचिंग फील्ड, तो हम लोगों के साथ में क्या है, लिविंग फैक्टर लगा हुआ नहीं है। हम लोग टीचिंग फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, तो हमने कोई इंफॉर्मेशन इधर से कॉपी पेस्ट की एआई से और उसमें कुछ चीजें गलत भी और हमने आगे पास कर दी, तो किसी का लिविंग हार्म नहीं होने वाला है, किसी को तकलीफ नहीं होने वाली है, या लिविंग सिनेरियोस नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, आपकी इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। बट अगर जो लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो लोग सर्जरी कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो यूजिंग एआई। क्योंकि पहले क्या होता था, डॉक्टर्स कभी कभी कोई चीज, नया सिम्टम, कोई नया पेशेंट आता है, तो डॉक्टर यूज टू सर्च कि हमने क्या करना चाहिए, तो 10-12 चीजें गूगल पे सर्च करने के बाद दे गिव यू रिजल्ट, बराबर है। अभी तो वो एआई से सर्च करते हैं। तो अभी मेडिकल फ्रेटर्निटी और हेल्थ केयर साइंसेस, उनको काफी एआई से अभी रिसर्च करना पड़ रहा है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल एआई ने उनको सजेस्ट किया कि ये मेडिसिन देनी चाहिए, बट उन्होंने अगर रिसर्च नहीं किया और वो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग करी और उन्होंने वो यूज कर लिया, तो लिविंग पैरामीटर इज ऑल्सो कनेक्टेड विद दैट, उससे हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है। तो एआई कैन डू एनीथिंग, इसीलिए वेरीफाई, रिसर्च एंड रिव्यू इज द रिस्पॉन्सिबल, वी हैव टू डू इट रिस्पॉन्सिबली। अभी हम आते हैं कि कौन से टूल्स हमको, सिंस द थीम बिहाइंड टुडेज एफडीपी सेशन इज टीचिंग लर्निंग, कौन से टूल्स हमने यूज करने चाहिए जिससे हमारा काम आसान होगा। आप कोई भी फील्ड को बिलोंग करते हो तो देखिए, जेमिनाई अब इतना पावरफुल हो चुका है, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, चैट जीपीटी, कि आपको उसके अलावा कोई टूल यूज करने की जरूरत नहीं है। बट उनका इंटरफेस कैसा है, एक चैटबॉट की तरह है। आपको बहुत सारा प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, और प्रॉम्प्ट लिखते वक्त आपको 5 पैरामीटर्स यूज करने पड़ेंगे, टेक्टिक्स यूज करनी पड़ेंगी, जिससे आप जेमिनाई से सारी इंफॉर्मेशन निकाल सको। लेकिन हर बार हम प्रॉम्प्ट नहीं सीख पाएंगे, हमको कभी कभी प्रॉम्प्ट सीखने का समय नहीं है और मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो कुछ एआई के टूल्स ऐसे बनाए गए हैं इन विच वी डोंट हैव टू राइट प्रॉम्प्ट्स इन डिटेल फॉलोइंग 5 पैरामीटर, जैसे मैंने बताया, एम, पर्सोना, टेम्पलेट। आप कुछ तो भी डायरेक्ट लिखिए, दैट टूल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू ब्यूटीफुल प्रॉम्प्ट्स, और वो आपको रिजल्ट्स बेस्ट देंगे। तो ऐसे कुछ टूल्स जो हमने हमारे लाइफ में यूज करने चाहिए, वन इज u.com. u.com, it is also a famous tool in AI which will help you to make diagrams. अगर हमको हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड we want some diagrams और आर्किटेक्चर, तो u.com takes your prompt और वो आपको अच्छे डायग्राम्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बना देगा। अक्सर ये होता है कि व्हेन वी आर सेटिंग क्वेश्चन पेपर्स, तो हमको कोई डायग्राम्स देनी पड़ती है, तो व्हाट वी डू नॉर्मली, वी टेक द फोटो फ्रॉम टेक्स्ट बुक और एनी अदर रेफरेंस बुक, फिर हम उसको कंप्यूटर में डालते हैं, क्रॉप करते हैं, फिर उसको हाईलाइट करते हैं, फिर क्वेश्चन पेपर में डालते हैं। तो एट द एंड रिजल्ट ये होता है कि वो दिखता है कि क्वेश्चन पेपर में कहीं से तो भी इमेज बना के कॉपी पेस्ट करके डाली है। कॉपीराइट इश्यूज आर आल्सो देयर। तो दिस टाइप ऑफ टूल्स विल कैन जनरेट योर रॉ इमेजेस, नए डायग्राम्स आपके लिए जनरेट करके देगा। सेकेंड इज
TinyVav is also a good tool for education, स्पेशली ये जो मैं टूल्स बता रहा हूँ स्पेशली एजुकेशन के लिए है। पीछे छुपे होते हैं, गूगल में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, तो कुछ हमने निकाल के रखे हैं वेयर यू कैन पीडीएफ पे अगर बहुत सारा काम है तो आपके पीडीएफ को एडिट करना, रिमूव पेजेस करना, हाईलाइट करना, इमेज से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, एआई कंटेंट से रिलेटेड, फाइल से रिलेटेड, एजुकेशन में जो भी चीज हम यूज करते हैं ये टूल हमारी हेल्प करता है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एजुकेशन को-पायलट, especially if I am creating some quizzes for my students, I am creating some question papers, question banks, मैं चाहता हूं जल्दी बन जाए टेम्पलेट में, दिस इज वेरी गुड ऑप्शन एजुकेशन को-पायलट। तो इवन कभी कभी हम बच्चों को प्रोजेक्ट्स देते हैं, तो अक्सर हमको प्रोजेक्ट देने के लिए वी वांट यूनिक आइडियाज, घिसे पीटे टॉपिक्स बार बार हम ना दे पाए तो एआई विल हेल्प अस टू जनरेट न्यू प्रोजेक्ट आइडियाज। तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट लिखने में भी मदद करेगा। अच्छा, कुछ इंस्टाग्राम के चैनल्स ऐसे भी हैं जो आपको ये बताते हैं कि ऐसा प्रॉम्प्ट लिखोगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा। बहुत सारे चैनल्स है, बेस्ट प्रॉम्प्ट्स भी बोला जाता है, उसको कॉम्पिटिशन भी होती है। इवन दिस एजुकेशन को-पायलट आल्सो सजेस्ट यू हाउ यू हैव टू राइट द प्रॉम्प्ट फॉर ChatGPT और Gemini so that you can best result, तो वो भी आपको हेल्प करने के लिए है। इस तरह से एजुकेशन को-पायलट इज वेरी फेमस। इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे मैं इफ आई एम टीचिंग सी प्रोग्रामिंग, तो देखिए यहाँ पे एजुकेशन को-पायलट का इंटरफेस ही ऐसा है कि लेफ्ट में वो पूछेगा कौन सा टॉपिक और लेसन आपको चाहिए, कौन सा कोर्स है, और आप जनरेट करो तो उसका लेसन प्लान जनरेट हो जाएगा। आज हम टीचिंग प्लान हमेशा बनाते हैं, तो टीचिंग प्लान बनाने के लिए एआई कैन हेल्प अस। जो चीज हमको हम एक दिन लेकर बनाते हैं वो हमारे लिए विद इन सेकेंड्स इट कैन बी प्रिपेयर्ड। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट लिंक्स जो मैं अभी सर से पीपीटी शेयर करूंगा तो ये आपसे शेयर करेंगे, तो आप अपने लाइफ में यूज कर सकते हो। आज का टॉपिक जनरेटिव एआई तो था, बट इसके अलावा दो कंटेंट्स और हमने ऐड किए थे। वन वाज जनरेटिव एआई, सेकंड वाज एआई, एंड थर्ड वन इज वर्चुअल रियलिटी। तो ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी इज अगेन द हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक इन एजुकेशन। तो अगर आप गौर करेंगे कि बहुत सारे कॉलेजेस में आ चुका है वो वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस, एक गॉगल टाइप होता है और उसमें एक नए एनवायरनमेंट में हम चले जाते हैं और वहां पे हमको ग्राफिक्स के थ्रू चीजें समझाई जाती है। फॉर एग्जांपल पुराने जमाने में या अभी भी हम लोग पीपीटी के थ्रू पढ़ाते हैं या बोर्ड पे डायग्राम्स बनाते हैं, क्यों ना वो डायग्राम 3D में आ जाए बच्चे के सामने और वो डायग्राम एनिमेटेडली, या मैं एक इंजन का फोटो बनाया और इंजन एनिमेटेडली काम कर रहा है, फ्यूल जा रहा है, क्रैंक्स आगे पीछे हो रहे हैं, गियर्स आगे पीछे हो रहे हैं, पिस्टन इज वर्किंग। तो इस तरह का नॉलेज देने के लिए वर्चुअल रियलिटी का कंसेप्ट आ चुका है। वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी ये दो अलग अलग वर्ड है, ये भी कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड नहीं है। कोई भी फील्ड का अगर टीचर है तो उसको एआर और वीआर पता होना चाहिए आज के जमाने में। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वर्चुअल रियलिटी का मतलब ये होता है कि आप एक गॉगल पहन लेते हो, एक डिवाइस पहन लेते हो इस तरीके का, ये जो यहाँ पे बच्चे ने पहना है, उसमें एक सॉफ्टवेयर है और जब वो पहनने के बाद वी आर मूविंग इनटू अनदर वर्ल्ड, ग्राफिक्स उसमें हमको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है या डायग्राम एक्सप्लेन की जा रही है। दिस इज वर्चुअल रियलिटी बिकॉज वी आर गोइंग इनटू वर्चुअल वर्ल्ड। हम हमारी क्लासरूम से निकल के कोई तो भी दूसरी दुनिया में जा रहा है और वहां पे ग्राफिक्स हमको दिख रहा है। दैट इज वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी नीड्स हार्डवेयर, बराबर है। तो अक्सर कॉलेजेस जो है अभी वर्चुअल रियलिटी लेबोरेटरी सेटअप करने के लिए पीछे हट रही है बिकॉज इनके हार्डवेयर बहुत कॉस्टली है। तो एक मार्केट में एक टेक्निक और है जो कि है ऑगमेंटेड रियलिटी, क्योंकि बिकॉज वर्चुअल रियलिटी नीड्स हैवी हार्डवेयर टू टीच, और हर स्टूडेंट के लिए अगर एक एक लेते बैठोगे तो वो इतने सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए कोई स्पेशल हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, यू कैन यूज योर मोबाइल फोन ऑल्सो। तो अभी बहुत सारे बच्चों के चॉकलेट्स आ रहे हैं, उसमें क्यूआर कोड आता है। जैसे मैं आपको एक प्रोडक्ट बताता हूँ, कैडबरी का एक प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे बच्चे अक्सर किंडर जॉय लेते हैं, हमारे बच्चे किंडर जॉय के लिए बहुत जिद करते हैं। तो किंडर जॉय का ही एक इंडियन वर्जन कैडबरी ने बनाया, लीकेबल्स, ऐसा पर्पल कलर का एक चॉकलेट का बॉक्स आता है, लीकेबल्स। उसके साथ वो एक ऑगमेंटेड रियलिटी का चीट दे रहे हैं। एक्चुअली बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो लीकेबल्स जब खोलते हैं तो उसमें से अंदर एक चीट निकलती है और उसमें क्यूआर कोड होता है, एंड वो कहता है कि आप ये ऐप इंस्टॉल कर लो तो हम लोग
बच्चों की चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देते, बट दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग, और व्हेन वी स्कैन द QR कोड, तो वो उसके साथ एक एनिमल आता है, वर्चुअल एनिमल लीकेबल हमको देता है। तो जब मैं मोबाइल फोन वो QR को स्कैन करने के बाद जैसे टेबल पे व्हेन आई एम पुटिंग इट, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि टेबल पे, मेरे इस टेबल पे डायनासोर चल रहा है या एलिफेंट चल रहा है। रियली एलिफेंट इज नॉट देयर ऑन टेबल, बट जब मैं मोबाइल फोन के कैमरे में देखूंगा तो मेरे मोबाइल फोन के कैमरे में मैं भी दिख रहा हूँ, टेबल भी दिख रहा है, लेकिन मेरे साथ एक एलिफेंट खड़ा है, वो दिख रहा है। दैट इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ऑगमेंटेड रियलिटी डोंट नीड एनी स्पेसिफिक हार्डवेयर। आप अपने मोबाइल फोन का कैमरा यूज करके क्लासरूम में मैं वर्चुअल चीज ला लूंगा, वो है नहीं बट कैमरे के थ्रू दिखेगी कि क्लासरूम में खड़ी है, उसके थ्रू भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। द वेरियस टूल्स आर अवेलेबल, 3D मॉडल्स वी कैन प्रोवाइड। तो आगे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होने वाली है, इट विल इंक्लूड 3 थिंग्स: जनरेटिव AI, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। बहुत लोगों का भी कहना है कि आगे हम जो पढ़ाते हैं चॉक एंड टॉक, व्हाट वी आर डूइंग इन द क्लासेस, बस ये अभी कुछ ही दिन तक है। कुछ दिनों बाद chalk and talk will be disappeared and everything will be in the form of graphics, virtual environment, 3D modeling images, AR and VR and generative AI। सिर्फ टीचर का रोल ये रहेगा एज अ फैसिलिटेटर, वी आर ओपनिंग अ 3D मॉडल एंड वी आर टेलिंग, हम स्पीच रह जाएगा, बाकी सारा ग्राफिक्स आ जाएगा। जैसे एक जमाने पहले क्लासरूम में ट्रांसपेरेंसी यूज की जाती थी, बाद में PPT का वर्जन आ गया, अभी PPT सस्ती हो गई है, अब AR VR और जनरेटिव AI यूज करके टीचिंग रोल विल बी बेनिफिटेड। So ethical AI principles in education will be fairness, accountability, transparency and privacy. So when using generative AI, AR, VR, again we have to maintain fairness from among all the student groups, accountability, जो AI decision दे रहा है we have to check, verify and then we have to present it in front of the students, then transparency as well as privacy. The AI models which we are using, we have to check it daily whether they are giving proper results or not, and in this way, with the help of AR, VR, AI and generative AI, the education will be changed in future days. So we should be ready rather than belonging to our specific field. I am belonging to agriculture, someone is belonging to pharmacies, तो हमारी फील्ड से रिलेटेड तो ठीक है, बट इफ यू आर नॉट यूजिंग टेक्नोलॉजीज इन मॉडर्न डेज, तो हम आउटडेटेड टीचर्स कहलाएंगे। क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स भी काफी, देयर आर स्टूडेंट्स हियर, तो काफी इम्पेशेंट हो चुके हैं। दे आर वॉचिंग कंटिन्यूसली रील्स ऑन मोबाइल फोन्स। यूट्यूब पे हम कोई वीडियो भी देखते हैं तो हम उसको स्पीड बढ़ा के देखते हैं 1.2 1.5, क्योंकि हमको तो सुनने की क्षमता, टॉलरेंस, कैपेसिटी ये कम हो गई है। अगर आप देखिए छोटे बच्चों को भी अभी मोबाइल फोन देख के ही वो फूड अंदर जाता है, अगर आप ले लो तो वो एग्रेसिव हो जाता है। ये दीज आर द कॉमन फैक्टर्स विच वी आर फेसिंग इन एवरी हाउस, क्योंकि मोबाइल फोन और स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से हमारा दिमाग एक पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट में फंस गया है, और आगे हमारे लिए एज अ टीचर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक द स्टूडेंट सिट इन द क्लासेस फॉर एटलीस्ट 1 आवर। 1 घंटे का लेक्चर स्टूडेंट्स को अभी बहुत भारी पड़ने लगा है, क्योंकि वो देखता है कि भाई मैं यहाँ 1 घंटा सुनने से अच्छा मैं यही इससे अच्छा यूट्यूब वीडियो, ग्राफिक्स वाला यूट्यूब वीडियो फास्ट मोड में 10 मिनट में मैं टॉपिक पूरा कर सकता हूँ। तो अगर हमको समय के साथ चलना है एज अ टीचर, तो वी हैव टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी, वी हैव टू यूज AI इन आवर फील्ड ethically, so that there will be a good relationship management between students and teachers, and student will be able to sit in the class for the long duration. So real world applications are every, because अगर आप एक लास्ट बात में कहकर खत्म करूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, अगर किसी से पूछा गया कि इनका फाउंडेशन क्या है, एक ने आंसर दिया कि इसका फाउंडेशन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। तो अगर आप वाकई में सर्च करेंगे तो AI और ML एक दुनिया की पहली और ऐसी फील्ड बन चुकी है जिसका फाउंडेशन सारी ब्रांचेस है। अगर आप एग्रीकल्चर का डेटा सेट लाओगे तो आपको एग्रीकल्चर के रिजल्ट्स मिलेंगे, पेट्रोलियम का लाओगे पेट्रोलियम के मिलेंगे। तो फाउंडेशन ऑफ AI एंड ML इज एवरीवेयर। टीचिंग लर्निंग सब आ गया उसमें।
तो वी शुड बी यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, और ये इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, अगर हम यूज करना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं। तो कुछ टूल्स मैंने लास्ट स्लाइड में डाले हैं, जो टूल्स हमने ध्यान में रखने चाहिए। अगर आप वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड, अगर आपके पास में लैब सेटअप्स है और आपके कॉलेज ने अफोर्ड किया है, दे हैव परचेज दिस थिंग्स, तो वो तो ठीक है। हार्डवेयर लेने के बाद में हम कहाँ पे वीडियोस देखेंगे? क्लास वीआर, एंगेज एक्सआर, विक्ट्री एक्सआर एंड एऑन रियलिटी, दीज आर द ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स ऑन विच वी कैन यूज वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस। जनरेटिव एआई टूल्स में तो चैट जीपीटी और जेमिनाई सभी कर रहा है। उसके बाद एआई ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर कुछ है, अगर हम एआई मॉडल ट्रेन करना चाहते हैं तो वर्टी, वर्चुअल स्पीच, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स है। कंटेंट क्रिएट करना है, नया कंटेंट क्रिएट करना है, तो ईडी पजल है, सिंथेशिया है, नियरपॉड है, नोलजे है। सो इन दिस वे the concept of generative AI, virtual reality and augmented reality collaborated together, and it will give the favors in the world of education. Thank you. Thank you very much for hearing me patiently. If there are any questions or queries you have, you can ask. Hmm. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं देखिए, आपने जो एग्जांपल लिया है मूवी अवतार, बहुत पैसा लगा है, तो एक्चुअली दे आर नॉट द एग्जांपल ऑफ ओनली वर्चुअल रियलिटी। मूवीज के पीछे बहुत सारे एनिमेटेड, फिक्शन, ग्राफिक्स, ये सारी चीजें काम करती है। तो एनिमेशन की एक दुनिया अलग है, जहाँ पे 2D और 3D रियलिटी को मोशन दिया जाता है और बनाया जाता है। दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी कॉस्टली। नाउ AR एंड VR टेक्नोलॉजी, दे आर हेल्पिंग टू जनरेट सच टाइप ऑफ कंटेंट इन अ इजी मैनर। पहले एनिमेटेड मूवीज जैसे अवतार अगर बनानी होती थी, अगर हमारे अमरावती में एनिमेशन इंजीनियरिंग स्कूल है, तो अगर आप देखोगे कि वो बच्चे किस तरह पढ़ते हैं, तो अगर उनको कोई कैरेक्टर बनाना है, फिक्शनेट कैरेक्टर बनाना है, तो पहले वो ड्राइंग करते हैं, फिर वो ड्राइंग 2D इमेज बनती है, फिर उसको कंप्यूटर के थ्रू 3D में कन्वर्ट किया जाता है, फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू, VFX सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको मोशन दिया जाता है, तब जाके एक एनिमेशन क्रिएट किया जाता है। अभी जनरेटिव एआई तो इतना पावरफुल हो गया है कि अगर आपने उसको बोला कि देयर इज अ स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन इज डांसिंग, तो वो 2 मिनट में एक वीडियो जनरेट कर देगा जहां स्पाइडरमैन डांस कर रहा है। इवन जनरेटिव एआई के एग्जांपल ऐसे दूंगा मैं, हमने एक फोटो खींचा, हमारे क्लास में सब लोग बैठे हैं, स्टिल इमेज है, और मैंने उसको बोला कि इस इमेज में मोशन डाल दो, तो ये फैन घूमने लगेंगे, लाइट्स बंद चालू होंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल रियलिटी और जनरेटिव है। आपने जो अवतार का एग्जांपल लिया, दैट इज अ वेरी हार्ड प्रैक्टिस। वहां पे एफएक्स के वो ज्यादा यूज होते हैं सॉफ्टवेयर, या एडोबी है, वीडियो जनरेटर है, इस तरह के सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा यूज होते हैं। एनी अदर क्वेरीज, क्वेश्चंस? मेरी एक रिक्वेस्ट सबसे ये रहेगी कि एआई और एमएल ये यूज करना इट इज नॉट डिफिकल्ट, इसको बनाना इट इज डिफिकल्ट। तो हमने तो पहला जो वर्जन है कि हमको ये टूल्स यूज करते आना चाहिए। कौन से टूल्स हैं? जैसे मैंने बताया, अगर आपने गूगल पे डाला एआई टूल्स फॉर एजुकेटर, तो लाइन से लिस्ट आ जाएगी। तो सारे टूल्स यूज करने की जरूरत नहीं है, आप चैट जीपीटी और जेमिनाई से ये सारी चीजें करवा सकते हैं। परप्लेक्सिटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। परप्लेक्सिटी इज ऑल्सो अ फेमस एआई मॉडल। जो एयरटेल सब्सक्राइबर्स है, उनको परप्लेक्सिटी का प्रो मॉडल फ्री मिलता है 1 साल के लिए। तो क्या करता है ये प्रो मॉडल, क्या है? अगर आप उसकी ईयरली कॉस्ट देखें तो 17 to 18,000 ईयरली कॉस्ट होती है। बट प्रो मॉडल मिलने के बाद हमको क्या होता है, अगर आप एआई में जाते हो तो देयर विल बी 3 ऑप्शंस। परप्लेक्सिटी में भी आप जाओगे, जेमिनाई इज नॉट फ्री, फ्री वर्जन जो है उसमें एक ही ऑप्शन है सर्च का। परप्लेक्सिटी अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो देयर आर 3 ऑप्शंस इन इट। वन इज ब्रॉड रिसर्च, अनदर वन इज नैरो रिसर्च, एंड थर्ड वन इज ऐप एंड प्रोजेक्ट मेकिंग। तो अगर आप तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हो ऐप एंड प्रोजेक्ट मेकिंग, और अगर आप उसको प्रॉम्प्ट लिखते हो कि मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर बना दो, मेरे लिए एक मॉडल क्रिएट कर दो, सारे बना के देता है। टाइम थोड़ा ज्यादा लेता है, प्रोजेक्ट्स भी बना के दे रहा है, प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो मेकिंग।
पूरा जनरेट करके देता है, आप उसमें करेक्शंस करके एडिट करके यू कैन रीयूज इट। तो एआई के हाथ बहुत बड़े हो चुके हैं आजकल, और हमको वो यूज करते आना चाहिए। एटलीस्ट वी शुड नो विच एआई इज हेल्पिंग यू अलॉट। अभी आगे ऐसा है कि कुछ साल में स्पेसिफिक डोमेन के लिए अलग अलग एआई रहेगा। फार्मेसी से लोग बिलोंग करते हैं तो उनके लिए एआई मॉडल अलग रहेगा, हेल्थ साइंसेस के लिए अलग रहेगा, एग्रीकल्चर के लिए अलग रहेगा। अभी कॉमन है, नाउ दे आर गोइंग टू सेपरेट इट। उसमें सारी चीजें रहेंगी, प्रेडिक्शन आ जाएगा, आइडिया डिसीजन मेकिंग आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएगी। एज अ फैकल्टी हम लोगों ने ये जो मैंने आपको लिख के दिया है, जनरेटिव एआई फॉर एजुकेटर्स फ्रॉम गूगल, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, आप उसको करें।